actually right now I'm in CP कनॉट प्लेस दिल्ली। तो उधर मार्केट के अंदर हम थे तो हमें मणिपुर के एक सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात हुई। तो वो मणिपुर में जो आज हालात है देश के अंदर, कितनी बुरी हालत है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो वायरल है, वहाँ की जो जितने भी आगजनी और महिलाओं के खिलाफ अपराध और इतना सारा इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे लोगों के साथ में, जो भी कुछ है वहाँ पे हालात उनसे बेहतर मुझे लगा कि कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े समय से और उनके तमाम मीडिया के अंदर उनके इंटरव्यू आ चुके हैं। वो बहुत ही गहराई से जानते हैं ट्राइबल फॉर्म, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और बहुत अच्छी तरह से ट्राइबल कंडीशंस को भी जानते हैं, वहाँ पे हालात हैं उनको भी जानते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। Namaste. व्हाट्स योर नेम सर? My name is Lalboy Nation. Yes sir. I'm the Vice President of Kukyu Zou Intellectual Council, as well as the General Secretary of All Manipur Tribal Union. Okay sir. Sir, right now whatever the condition over there in Manipur is really very grave actually. Something is very dangerous happening there and it's really disturbing the whole nation. The conscience of whole nation is disturbed right now, looking at the videos, the nude videos of women over there or other crimes and people being killed there and mercilessly, and this is really unfathomable. Actually people are not able to understand what is going on there because we rely, mostly the public relies on the mainstream media news, and that is not 100% correct, that because it's contradictory. What they've been showing on the mainstream media was something else, and what was coming through the videos was something else, and that was very shocking for the people because whatever they have been watching on mainstream media was very pleasant or something that was nothing was happening there, and showing Kukis, especially the tribal people, as a criminals, actually criminals or the militants, or they're trying to color them very badly. So people were not able to understand that if whatever was being shown on the mainstream media that the Kukis were militants, and then how the actual data what is coming up now in open in public domain, that maximum churches were burnt of Kukis only, and number of deaths, 90% deaths were also from Kuki communities only. Then how they can be militant? Who is killing them then? Then there was lots of contradictory news are coming. So we want some clarification. Kindly give some light on the issues. What is happening there? We do not know. Maybe you will tell the real story behind why this all crime and everything dangerous, or what do you call the nightmares or something satanic happening over there with the innocent people. The Kukis are being killed. And the story is totally different what they are showing on the mainstream media. Kindly give a light on that, please. What's your name, sir? My name is Lalboy Nation. Yes. मैं पूरा दुनिया को ये इसको समझाना चाहता हूँ। आप ट्राइबल फॉर्म के कुछ प्रेजेंट? मैं एक ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी। और उसके साथ साथ वर कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। तो हम 5 साल इसकी वजह से ट्राइबल इनहेरिटेंट राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 371C सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखते लोग तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए 5 साल में रन चुका हूँ। तो सच्चाई तो ये है, द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव ए लुक ईस्ट पॉलिसी। उस लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है गोल्डन ट्रायंगल ने उन्होंने बिजनेस बनना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में सबसे डरते हैं ये चाइना, क्योंकि चाइना तो इन एवरी वेज इन एवरी फील्ड दे आर बूमिंग, दे आर पावरफुल। इवन USA एंड रशिया दे आर लुकिंग एट द आइज ऑफ चाइना। सो चाइना को सुपरसीड करने के लिए उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल ने बिजनेस बनना है, वहाँ इंटर रोड कनेक्शन कर बनाना है और रेल कनेक्शन बनाना है। उसकी टाइम मणिपुर सरकार तो ये है, सारे हाई अप चीफ मिनिस्टर से लेके सारे मिनिस्टर लोग और आतंकवादी लोग तो हैंड इन ग्लोव होते हैं, बिजनेस बनाते हैं। वो बिजनेस तो क्या है? ड्रग बिजनेस। तो वो ड्रग बिजनेस तो एक पुलिस ऑफिसर है, इसका नाम है इसका नाम whatever his name is, doesn't matter. Actually just focus on the what is happening over there. तो उस औरत ने भी बता रहा था ये ड्रग माफिया, ड्रग बिजनेस की वजह से मणिपुर तो जल रहा है, हिंसा हो रहा है, इसे बताया। तो इसका नाम है बृंदा थोनौजम, ये एडिशनल SP हैं। तो उसने सारे खुल के सच्चाई तो बता दिया था।
ये सरकार है, सबसे पहले पैसा चाहते हैं और उसके बाद पावर चाहते हैं। बीजेपी को हमेशा रूल करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पैसा तो पावर है बोल के ये ड्रग बिजनेस को शुरू करते हैं। तो उन्होंने पॉपी कल्टिवेशन शुरू करवाते हैं आतंकवादी का साथ जोड़ मिलके। वो पहाड़ी में पॉपी कल्टिवेशन किया था। किसने शुरू कराया? ये आतंकवादी लोग ने। अच्छा, ये मेइते आतंकवादी कौन है ये लोग? ये PLA है, UNLF है, KCP है, KYKL है। तो मिताई ने खुद मिल के करवाया पॉपी कल्टीवेशन? हाँ, उन्होंने इसका सीड्स को वहाँ गोल्डन ट्रायंगल से लेके मणिपुर में पहुँचा दिया। लेकिन अब वो कुकीज़ को बोलते हैं कि आप कुकीज़ को बोलते हैं कि ये है पॉपी टेररिस्ट। उसकी काम को छुपाने के लिए हमको बदनाम दिया है। उन्होंने करके नाम तो हमारा गलती से बदनाम देते हैं। तो उन्होंने उसको लेके सारे पहाड़ी में उन्होंने प्लांटेशन किया था, वो इसका सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि वहाँ से खाना पीना, बंदूक और अम्युनिशन सारे को वहाँ से आना है। उसकी वजह से उसको उन्होंने बनाते हैं। तो ये पॉपी कल्टिवेशन तो बनने के बाद तो सरकार ने पावर चलाते हैं ना, हर इलेक्शन के टाइम में जीतते हैं, क्योंकि पैसा तो पावर है। तो उसकी वजह से मणिपुर में क्या होते हैं, हम ट्राइबल कुकीजो लोग को ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत ऊंची हो गया है। सारे सीनियर IAS IPS लोग तो कुकीजो की ग्रुप होते हैं और उसको मेइते लोग ने बहुत जलन बन दिया है, बहुत जलते हैं। और उसके साथ साथ हमारा क्या है ST SC की क्या क्वाता लोग भी उन्होंने चाहते हैं, क्योंकि मेइते लोग तो जनरल है, OBC है और SC है, खाली बाकी ST ही खाली है। लेकिन उसको भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि एडमिशन की क्वाता है और यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्वाता है और काम की क्वाता है, सारे को उनको लेना चाहते हैं पूरा। जो फंड है वो तो अभी लास्ट टाइम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 2021 और 22 का जो फंड है वो 7,000 करोड़ के करीब था। उसमें से उन्होंने कुकीज़ एरिया को 49 करोड़ दिया हिल्स को, और बाकी 6,951 करोड़ वो मेते को दिया। वो लगातार 3,000, 4,000, 5,000 और अब 7,000 करोड़ का आया। तो लगातार ऐसे ही होता आ रहा है। तो हिल्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, वो सारा पैसा कुकी मिते ग्रुप को देते हैं और वो वैली में चला जाता है सारा कुछ। तो वहाँ पे उनका हिल्स में कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। तो वो उसको कैसे देखते हैं आप? देख लो, शुरुआत से क्या मेइते लोग ने हम ट्राइबल को बहुत शिकायत करते हैं, क्योंकि हर 100% सेंटर की फंड आने के टाइम तो 10% भी नहीं पहुँचते हिल में, 90% तो उन्होंने सारे चला जाते हैं। इसीलिए इन्फल में सारे यूनिवर्सिटी से कॉलेज है और टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, मेडिकल MBBS और नर्सिंग हॉस्पिटल सब कुछ और सब कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन 5 यूनिवर्सिटी इनका अंदर में है। लेकिन चुरचानपुर सेकेंड टाउन में 2 कॉलेज ही हैं, लेकिन इनके पास तो कॉलेज बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी तक भी 5 होते हैं। तो ये बहुत क्या है। तो सर ये अभी जो इतना रिसेंट जितना वायलेंस हो रहा है मणिपुर के अंदर, बहुत बुरी तरह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काफ़ी जो भी जो डाटा आ रहा है उसके अंदर कुकीज़ का ही ज़्यादा मरने का डाटा आ रहा है, जबकि उन्हीं को मिलिटेंट्स बताया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स हैं और क्रिमिनल्स बताया जा रहा है इनको, जबकि मर तो उन्हीं के लोग रहे हैं कुकीज़ के। तो जब मिलिटेंट्स हैं तो वो किस बात के मिलिटेंट्स हैं जब वो अपने खुद ही मारा जा रहे हैं? क्या खुद अपने आप को गोली मार रहे हो? कौन मार रहा है उनको? और फिर एक तरफ ये बताया जा रहा है कि मेते लोग बड़े शांति प्रिय हैं, सिर्फ डंडे से बात करते हैं। तो क्या डंडे से मार देते हैं क्या? जब जितने लोग मरे हैं 80-90% तो कुकीज़ के ही मरे हैं। और चर्चिज़ हैं, 350 से ज़्यादा चर्चिज़ जलाए जा चुके हैं। मंदिर तो शायद 50 के करीब जलाए गए हैं, 50 के करीब। तो वो इतनी ज़्यादा संख्या में कुकीज़ को मारा गया है और वो हैं भी 10%, और ज़्यादातर तो मेते ही हैं 90% वहाँ। तो फिर उनको कुकीज़ को मिलिटेंट्स कह के आप क्या दिखाना चाहती है? सरकार क्या बताना चाहती है? उनको जान से मारना चाहती है, जेनोसाइड करना चाहती है? एक सिंगल डे में 40 से ज़्यादा कुकीज़ को मार दिया गया। उस बारे में एन बीरेन सिंह ने बोला भी था कि 40 मिलिटेंट्स को मार दिया आर्म फोर्सेस ने अलग अलग लोकेशन पे मणिपुर के अंदर। तो वो कौन थे? वो तो यही लोग थे। बाद में पता लगा कुकीज़ थे सारे के सारे, उन्हीं को मिलिटेंट कह के मारा जा रहा था। फिर उसके बाद जब लोगों ने शोर मचाया तो कुकीज़ को मिलिटेंट्स कहना बंद करा। भारत सरकार के जजेस ने बोला कि ये
कुकीज़ मिलिटेंट्स नहीं है, आप उसको जेनोसाइड नहीं कर सकते ये कह के उसके बाद में सरकार ने उनको मिलिटेंट्स कहना बंद करा और जो जज ने कहा था कि ये सिर्फ एथनिक ग्रुप्स हैं दो, इनको आप मिलिटेंट्स कह के आप जेनोसाइड नहीं कर सकते स्टेट मशीनरी द्वारा। तो उसके बाद वो बंद करा, फिर दोबारा से मिलिटेंट्स कहना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने उनको। तो दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न बिहाइंड दिस इंटायर वायलेंस? व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न? क्या एसटी दर्जा देना मैतेई को असली रीज़न था या कोई और रीज़न था? कैसे ये वायलेंस एकदम से भभक गई, बहुत बुरी स्केल पे चले गई? क्या रीज़न है, एक तो ये बताइए। और दूसरा, क्या क्या करना चाहती थी गवर्नमेंट वहाँ पे? क्या कोई मिनरल्स हैं, क्या कोई खजाना गड़ा हुआ है? आखिर चाल है क्या गवर्नमेंट की, जो कि लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की चाल है? अगर गवर्नमेंट की चाल है तो ये रीज़न क्या है, क्यों ये वायलेंस भड़के एकदम से, उसके बारे में? वायलेंस ऐसी शुरू होते हैं। सबसे पहले पहाड़ी को 2003 में साइंटिस्ट को आके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोग आने के टाइम तो हमारा जगह, हमारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे नेचुरल रिसोर्सेस है। अच्छा। ये है पेट्रोलियम है, 1.43 ट्रिलियन क्यूबिक फीट मिलते हैं। अच्छा। उसके बाद ज्वेल्स भी मिलते हैं। वो ज्वेल्स है सीमेंट के लिए, आयरन बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, लिग्नाइट, क्रोमाइट और कोबाल्ट ऐसे मिलते हैं और सारे चीज़ मिलते हैं। हाँ। और उसके बाद माइनरल्स भी मिलते हैं, ये रूबी है, सफ़ायर है, गोल्ड मिलते हैं। ये सब मिलने के टाइम तो उन्होंने कब्जा करना चाहते हैं। तो ये रीज़न था कि वो दिस वाज द मेन रीज़न टू give Meitei ST status so that they can control whole of Manipur hills also, where this खजाना big treasure is there of all minerals and everything. So उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ST दर्जा दिया उसको कि पूरे का पूरा कब्जा कर लेंगे। और हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने होंगे, इंडस्ट्रीज़ के बता रहे हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने थे, तो उसमें लग रहा था कि कुकीज़ के एरिया के अंदर हम कैसे लगाएंगे, वो तो प्रोहिबिटेड एरिया है। तो फिर ST तो ST लगा ही सकता है ना? तो दूसरे मेथड लाके ST ग्रुप में नहीं लगा सकते, वो उस जगह पे नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो शायद सम प्रॉब्लम वाज देयर, सो दे ट्राई टू मैनिपुलेट ऑल दिस थिंग। ये लगता है आपको कि वो मैनिपुलेशन था गवर्नमेंट के द्वारा, मेतई ग्रुप के द्वारा, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी सभी उन्हीं के, मेतई ग्रुप के, जो भी फंड जाता था वो मेतई ग्रुप को ही जाता था, कहाँ जाएगा वरना वो इतने हज़ारों करोड़। तो वो उनके थ्रू ही प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे और माइनिंग करना चाहते थे मिनरल्स वगैरह की, और उस खजाने पे नजर थी, इसलिए सारा विवाद क्रिएट हुआ। ये लगता है आपको? ये कहना चाहते हैं ना आप? They want to extract all the natural resources in our place. अच्छा, उस For that reasons, they are giving a bad name, because in order to chase out from the our soil, from the place, they say that these peoples are foreigners, they are refugee, they are narco terrorists, they are poppy cultivators, they are false encroachers of the forest. It is only a namesake. They are giving a bad name to us, but the real intentions of the Meitei and the Meitei government is that in order to grab our land, because our land is rich in natural resources. For this reason, they are doing this and that, this and that. But when they cannot do this one, because in MLR and LR Act 1960, it is written that the general Meiteis has no right to go and purchase and settle in the lands of the tribal. So they cannot come and take away our land. So in Article 371C, there is a constitutional safeguard to the tribal. For that reason, as they cannot come and settle and buy our land, what do? They give a bad name to us, that these peoples are poppy cultivators, these peoples are foreigners, Burmese refugees, they are narco terrorists. तो उस एरिया में घुस के उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एसटी का दर्जा दिया गया था, वो प्लान करके करा गया था मेतई ग्रुप को जो। It is already a plan. It is many years back. They already planned. Why it is a plan? On that very night, on the 3rd of May, they have all the list of the peoples. The Kuki Jau people's names are there in the list. All those names written in the list, they go and attack it. It could be a minister's house, it could be MLA's house, it could be a police officer's house or IS officer's house, whatever it is. They go and attack only which is in the list. And the house of the Kuki tribals are being painted in red color. So they already pre-planned all these things. अच्छा, तो वो पूरा प्री प्लान था। और तो आखिर रीज़न क्या था? इसके अलावा कैसे आग भड़की वहाँ पे? अचानक एक कोई आग भड़की, उन्होंने देखा कि अभी तक हम यही पता कर रहे हैं कि वो एसटी का दर्जा मिला, तो उस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा कुकीज़ ने, तो उसके बाद भड़क गया। जबकि आपको क्या लगता है, यही सच्चाई है या कुछ और सच्चाई है, कुछ और हुआ था जिसकी वजह से आग भड़का, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भड़क गया? See, because ऐसी है, हमारा सीएम ने एक वॉलंटियर को मिलिशिया है ना, और आतंकवादी जैसी बोलना है, वो आरामबाई तेंगोल बोल के उसको बना दिया है। वो मोर देन 5000 पीपल्स होते हैं। और हमारा एमपी ने सना जाओबा ने अलग बनाते हैं मेइतेई लिपुन।
ये दोनों को मिलके 10,000 का ऊपर हो गया। उनको बंदूक मारना और वार करना ये सारे को उन्होंने बना चुका है। तो उस दिन ने एक रात ही ने क्यों सारे कुकी जो ट्राइबल की कॉलोनी तो उन्होंने आग जला सकते हैं, ये सब ही ने करते हैं क्योंकि इनका पास लीज होते सारे इनका कुकी जो की घर को जाके आग जलाते हैं। अभी तक कितने चर्चेस जल चुके हैं टोटल? 375 चर्च जलते हैं। मोर देन 1 लाख तो डिस्प्लेस हो गया है। मोर देन 1 लाख कुकीज डिस्प्लेस हो गया है टोटल दोनों का मिला के? नहीं, मोर देन 1 लाख ट्राइबल लोग ही। ट्राइबल, अच्छा। चुरचानपुर में भी है, टिंगनोपल में भी है और कांगपोकमी में भी है, शिलोंग में भी है, गुवाहाटी में भी है और मिजोरम में भी। मंदिर कितने जले हैं? मंदिर तो क्योंकि हम अंदर जा नहीं सकते, एक तक भी हम ट्राइबल ने नहीं छूना मंदिर को। लेकिन वो कह रहे हैं 50 के करीब जले हैं ना। वो इसको सुनो, 3 तारीख को उन्होंने हमको भगा दिया है। इनफाल हम जा नहीं सकते। तो कुकीज तो कैसे उनके मंदिर और इनके चार्ज तो हम जो डाटा देंगे वही मानेंगे। हाँ, कैसे हम आग जला सकेंगे? इनफाल जाके उन्होंने खुद ही हमको मारेंगे, हम नहीं जीतेंगे। तो 3 तारीख को भगाने के बाद तो हम कैसे जाके इनको रेप करूंगे, इनको कैसे इनकी घर को जलाओगे और इनका मंदिर को हम कैसे आग जलाओगे? ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, तो वो लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 50 के करीब जो डाटा आ रहा है मीडिया के अंदर, वो कह रहे हैं 50 के करीब है, 350। तो आप कह रहे हैं 375 के करीब चर्चेज जल चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा कुकीज़ डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो कितने कुकीज़ मरे हैं अभी तक आउट ऑफ? अभी तक तो 200 एंड समथिंग मर चुके हैं। कितने में टोटल कितने मरे हैं लोग? 203 जैसा होगा। आज तो 3 मर गया है ना। कितने मरे हैं? कुकी जो लोग टोटल कितने लोग मरे मणिपुर में अभी तक? मणिपुर में पूरा तो नहीं जानता हूँ, मैतेई की तरफ डाटा तो लेकिन हमारा ट्राइबल लोग तो 203। अच्छा, 203 आपके ट्राइबल लोग मर चुके हैं। मर चुका है। और वो मेरे ख्याल से डाटा है वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, इससे थोड़े बहुत ही आगे होगा। मेरे ख्याल से 250 से भी कम होगा टोटल। अगर ओरिजिनल डाटा तो अभी आया नहीं मीडिया के अंदर, तो रेस्ट्रिक्टेड आता है, ज़्यादातर पुराना न्यूज़ चल रहा होता है, पुराना डाटा आता रहता है, लेटेस्ट डाटा। जैसे कि मैंने कहा कि 350 चर्चेज़ का मुझे पता था, लेकिन अभी 375 चर्चेज़, तो अभी उसी तरह से डाटा पूरा अपडेट नहीं आ रहा है। ये तो गलत है। गलत क्योंकि सरकार के साथ साथ ये मैतेई लोग तो जोन मिलके हमको पूरा जीनोसाइड करने के लिए प्रोग्राम था, क्योंकि उस दिन 4 तारीख को हर जगह में पुलिस स्टेशन में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं कि वो बार बार ये क्या सोची समझी साजिश के अंडर कर देखते हैं कि बार बार ट्राइबल्स को वो मिलिटेंट्स कह के बोल रहे हैं बार बार, जिससे कि आसानी से जेनोसाइड करा जा सके? क्योंकि मिलिटेंट्स को तो मार सकती है आर्म फोर्सेस, है ना, राइट? मिलिटेंट्स अटैक करेंगे तो उनको मारा जा सकता है। तो बार बार ट्राइबल्स को मिलिटेंट्स कहना क्या आपको लगता है कि जस्टिफाई है? नहीं, जस्टिफाई नहीं, क्योंकि जेनोसाइड कर देंगे। ट्राइबल तो कोई मिलिटेंट नहीं है, ये विलेज एथनिक ग्रुप्स हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, दोनों के पास हथियार है, वही लोग दोनों ग्रुप के पास हथियार है। हमको मारने के लिए आने के टाइम तो हम अब अपना सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। इसीलिए विलेज लोग को आप अपना विलेज को डिफेंस करने के लिए खा रहे हैं, वही है। हम आतंकवादी कोई कुछ है नहीं। तो आगे क्या देखते हैं आप इसको इस पूरे के पूरे मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं कि अब आगे क्या होगा? आपको लगता है कि शांति बहाल हो पाएगी कभी भी, या सॉल्यूशन क्या है उसका? आप क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले हमारे सीएम को हटाना और प्रेसिडेंट रूल रोकाना। यही मैं पिछले वीडियो में बहुत बार बोल चुका, काफ़ी सारे कुकीज़ के आपके जो लीडर से लगातार बोलते रहे हैं कि ये आप सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लाइए, जिससे कि शांति बहाल हो पाए वहाँ पे। उसको सीएम को हटाइए, जिसके अंदर लोगों का विश्वास नहीं है, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष का विश्वास होना जरूरी चाहिए सीएम को, और शांति लाने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो पक्षपात कर रहे हैं और बाइस हैं वो टुवार्ड्स ट्राइबल पीपल, तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। काफ़ी लगातार बोल रहे हैं वो ये बात तमाम लीडर। और दूसरा, प्रेजेंस रूल लाना जरूरी है, जिससे कि शांति बहाल हो पाए वहाँ पे। और तीसरा, उसके बाद सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उसको? अभी है फाइनल सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाना है, हमारा सीएम को हटाना है, क्योंकि ये 15 बॉक्स है जी। तो सेंटर ने हम ट्राइबल को अभी तो जोग्राफिकली, फिजिकली पूरा हम सेपरेट हो गया है, इसीलिए हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देना है। वहाँ से फाइनल पीस, हार्मनी और नॉर्मल से आएंगे। यहाँ तक कि कुछ पिछले जो लोगों से मैं मिला हूँ, दूसरे भी लीडर से मिला हूँ, क्योंकि इसके उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे
हमें एरिया समेत हमारे पूरे एरिया समेत मिजोरम के साथ जोड़ दिया जाए, कम से कम शांति से जिंदा तो रह पाएंगे, एग्जिस्ट तो कर पाएंगे। यहाँ तो हमें मार ही देंगे ये लोग, तो बहुत बुरी हालत के अंदर, हम तो बहुत थोड़े से लोग हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो लास्ट आप कोई सेपरेट कंट्री तो नहीं मांग रहे हैं ना? सेपरेट कंट्री नहीं हाँ, मांगते वो तो सेपरेट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मांग हम रहे हैं। हो सकते तो स्टेट की अंदर में स्टेट, हाँ, स्टेट के अंदर सेपरेट, उसको कहते हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलते हैं स्टेट सेपरेट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। मेइतेई के अंदर में या नहीं फिर होना। अगर सेपरेट स्टेट की भी मांग करते हैं तो सेपरेट स्टेट बहुत सारा पहले दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ बनाया गया है, झारखंड बनाया गया है, तेलंगाना बनाया गया है, जो वोट बैंक की, हाँ बहुत सारे बनाए हैं लोगों ने। ये उत्तराखंड बनाया हुआ है, उत्तरांचल जिसको कहते हैं, तो तमाम बनाए हुए हैं जनता की सहूलियत को देख। लद्दाख भी बनाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बनाया जा सकता है। कोई दैट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है वो। हमें एक जनता अगर शांति से रह सकती है और कोई भी ग्रुप हमारे देश के कोई भी जो कम्युनिटीज़ हैं अगर शांति से रह सकते हैं, इस तरह से कोई सॉल्यूशन है उनकी समस्या का, तो शायद सरकार को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और पूरे देश के लोग अपोजिशन इस बात को सहमत होने चाहिए और जल्दी से जल्दी समाधान की तरफ कोशिश करनी चाहिए कि इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो या फिर सेपरेट स्टेट बना दो, जैसे बाकी जगह बनाइए। कोई अलग तो मांग नहीं रहे, ऐसा तो नहीं मांग रहे जो पहले कभी इंडिया में हुआ नहीं। ये तो बहुत जगह हुआ, मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको। और ये भी कहना चाहता हूँ, मेइतेई लोग आप इनको तो टेररिस्ट या एंटी नेशनल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बेचारे शांति चाहते हैं अलग, क्योंकि उनके साथ अब नहीं रह पा रहे हैं, उनकी इतनी तादाद है, वो इनको लगातार मार रहे हैं, इनको मिलिटेंट्स बोल रहे हैं, तमाम टैक्स लगा रहे हैं, तो दैट इज वेरी डेंजरस। जी बोलिए। मेइतेई लोग तो उन्होंने सेपरेट नेशन और सोवरेनिटी उन्होंने कर रहा है। दे आर वेरी एंटी इंडियन, दे वांट ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांट ए सेपरेट नेशन। कौन? सो द मेइतेई लोग, मैं तो अलग तो नहीं है, वो इंडिया में तो है। नो इंडिया में तो है, लेकिन दे वांट ए सेपरेट कंट्री। उन्होंने कभी बोला नहीं इस बारे में। ना, इट इज हिडन। अच्छा। They want to seal in the name of the BJP, and they are fighting for sovereignty. They are fighting sovereignty for तो कभी मिल ही नहीं सकती, बीजेपी तो कभी कर नहीं सकता, वो इलेक्शन हार जाएगा पूरे देश के अंदर अगर बीजेपी अगर sovereignty दे देगा। See, the proof is that one of the Maharaja's son, he went to London and he said that Meitei never ever been part of India. We ऐसे are तो बहुत separate. सारे थे, बोलते रहते हैं सब So, लगातार पूरे देश में बोलते we रहते want हैं। separate nation, हाँ। respect our sovereignty. He अच्छा, said वो like पहले that. उनके महाराजा जा चुके हैं, इंग्लैंड के महारानी के पास सेपरेट नेशन मांग लेंगे, The सोवरेनिटी मांग grandson लेंगे। of Maharaja. हाँ, तो वो तो ब्रिटिश शासन की तो हमेशा चाल रही है कि फूट डालो, शासन करो, सबको बोल दो वो अलग था, वो अलग था, वो अलग था, जिससे आगे तक लड़ाई होती रहे। उनका तो कुछ नहीं, वो तो चले गए पीछे से और हेट्रेट और नफरत का बीज छोड़ के चले गए कि भी सब अलग अलग देश मांगते। ऐसे तो देश पूरा का पूरा हिंदुस्तानी छोटे छोटे टुकड़ों में था, ऐसे तो सारे अलग अलग राजा थे, ये थोड़ी अलग मिल जाएगा उनको कोई सेपरेट नेशन नहीं मिल सकता, कभी भूल जाए वो, ऐसा कभी भी हो सकता है। So बीजेपी my final plea to the central government is that जी it is a shame for not only Manipur, a shame for India, when your daughters, when your son, when your daughters, when your sister, when your wife is being paraded naked and raped. So you have to wake up, and the central government, especially the Prime Minister and the Home Minister, do your best foot foremost for the peace and harmony of Manipur. Give us a separate administration and put president rule. Then peace will be in Manipur. लेकिन अगर जैसे कि आपने बोला और तमाम ये जो जितने फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, उससे ये पता लगता है कि जैसे कि आपने भी अभी एक्सप्लेन किया कि अगर बीजेपी रूल पार्टी जो है वहाँ पे, मेतई जो बीजेपी रूल कम्युनिटी है जिसका रूल है वहाँ पे, वो और बीजेपी सरकार जो वहाँ पे मौजूद है, वो अगर ये चाहते हैं कि उनकी नज़र हिल्स के ऊपर है, उनके मिनरल्स के ऊपर है, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है, तो आपको लगता है कि वो मानेगी आपकी डिमांड को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि उनकी चाल नहीं चली जा सकती उस हिसाब से? तो वो तो मेतई को चाहेगी कि मेतई कंट्रोल कर ले और उससे हम सारा लूट लें, यही चाहेगी ना जैसा कि। तो क्या आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी आपकी बात? मेरी सरकार ने तो नहीं मान जाएगी, नहीं दे देंगे, लेकिन सेंटर के हाथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंटर की ही सरकार है वहाँ पे, बीजेपी की रूल स्टेट है वहाँ पे, तो आपको लगता है कि आपकी डिमांड मानी जाएगी, या आप चाहते हो अपोजिशन पार्टी महागठबंधन है, उन्होंने भी विजिट किया अभी, तो वो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं अपोजिशन उस पर प्रेशर डाल के इस बात को एक न्याय संगत, एक ऐसी मौजूदा सॉल्यूशन तक पहुँचाए, उसको न्याय तक पहुँचाए जिससे कि कोई समाधान निकल पाए? क्योंकि ऑन गोइंग लड़ाई, वो लगातार आगजनी और फायर और मौत और लगातार होता जा रहा है, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है पूरे के पूरे मणिपुर में, वो बहुत गलत है, पूरे देश के लिए एक सही नहीं हो रहा। देश के लोग बहुत परेशान हैं, सच में परेशान हैं इस चीज़ को देख के, मणिपुर के लोगों को देख के, ट्राइबल जोन को, इतने बेचारे ट्राइबल लोगों को मरते देख के बहुत दुखी हैं लोग, आम जनता बहुत डिस्टर्ब है उसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी और एनीथिंग एल्स। तो आपको लगता है कि सरकार मानेगी इस चीज़ को? आपको लगता है कि आप गठबंधन को चाहेंगे कि अपोजिशन प्रेशर डाले गवर्नमेंट के ऊपर इस सॉल्यूशन पे आने के लिए? सेंटर गवर्नमेंट मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी सरकार है, वो तो नहीं मानेगी।
मानेंगे। उनकी तो नजर है क्योंकि- रिसोर्सेज पे, आप कह रहे हो, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि रिसोर्सेज पे नजर है, वो तो चाहते ही हैं कि वो कब्जे में आ जाए। पीस लगाने के लिए तो सरकार ने भी मानना चाहिए, माना भी है। हाँ, नहीं तो हमेशा हम लड़ते रहेंगे। तो ये और लड़ाई सारे लड़ती को हम- होती रहेगी अगर सॉल्यूशन नहीं निकला, तो आप चाहते हैं Solution जल्दी से नहीं जल्दी निकला। सॉल्यूशन Solution होने के लिए तो सरकार ने भी हमारे डिमांड को मानना है। ठीक है, तो आप वही शांति से फाइनल। सरकार से डिमांड करते हैं पीसफुली सॉल्यूशन के लिए कि सब शांति हो, और आप ये भी चाहते हैं कि मैंने कोशिश करी कि दोनों ग्रुप के लोगों से पीस मार्च निकाला जाए, एटलीस्ट जंतर मंतर पे या दिल्ली में, दोनों ग्रुप के लोगों के साथ, जिससे कि शांति बहाल हो पाए, एक मैसेज जाए वहाँ पे लड़ने वाले, उनसे कम से कम शांति होगी तभी तो बात होगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। शांति तो होनी चाहिए ना, पहले तो मारकाट खत्म होनी चाहिए, जो लोग मरने बंद हो जाए दोनों तरफ के। ये आप एग्री करते हैं इससे? अग्री करता हूँ। आप चाहते हो पीस मार्च होना चाहिए? लेकिन सेंटर के लिए ये चीज़ तो इतना बड़ा चीज़ नहीं होते हैं। सेंटर नहीं, अगर ये पब्लिक अगर इस पे इनिशिएट ले, आप जैसे एक्टिविस्ट इनिशिएट ले, या और कोई जो दूसरे एक्टिविस्ट हमारे जैसे कोशिश करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में शांति हो, मणिपुर में शांति हो, उसके बाद कोई सोल्यूशन की बात, किसी भी डिस्कशन हो सकता है। मारकाट मच रही हो, कत्लेआम मच रहा हो, आग लग रही हो, उसमें तो नहीं हो सकता ना, शांति तो होना चाहिए। पहला तो यही हो कि शांति हो, इसीलिए आप चाहते हैं प्रेजेंस रूल हो वहाँ पे, है ना। सो उसको सीएम को हटाया जाए जिससे शांति हो। शांति, पीस इज योर फर्स्ट इनिशिएटिव ना, कि वहाँ पीस हो। तो डू यू वांट, यू एग्री टू प्रोटेस्ट और एक शांतिपूर्ण धरना दिया जाए या रैली करी जाए दोनों ग्रुप के द्वारा, जिससे कि शांति बहाल हो? आप दिल्ली में करना चाहेंगे ऐसा कुछ इनिशिएटिव? अगर हम शुरू करते हैं तो कुछ एक्टिविस्ट आप लोग सपोर्ट करेंगे? The best solution is that the center should put a separate administration. They have to talk, and after that, peace process should be was started. No, तो आप पीस, first a separate administration should be finalized. तो- and after that, peace process will come. लेकिन out. डियर फ्रेंड, आप पहले तो शांति होना जरूरी चाहिए ना, तभी तो आप बात करेंगे नहीं, सारी। ये तो मुश्किल नहीं है। पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ना, यूटी है, यदि क्योंकि मेते ग्रुप से हमने बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं, शांति नहीं, नहीं कर सकते जब तक कि बात कोई रास्ता ना ऐसी निकले। होना है। सेंटर ने कुछ शांति बनाना चाहते तो पैरामिलिट्री फोर्स हम लगाएंगे और आरपीएफ लोग लगाएंगे। इतना ज़्यादा लक की आरपीएफ तो रखने के टाइम तो बातचीत हो सकते हैं, शांति खुद ही लेकिन अब अगर अपना पैरामिलिट्री आएगा। फोर्सेस को अगर ये बोला जाए कि वो ट्राइबल लोग मिलिटेंट्स हैं, तो वो तो उनको मारना शुरू कर देंगे। मिलिटेंट से इसी बोल के तो मेरे पास भी लोग भी मिलिटेंट होना नहीं है। तो जेनोसाइड तो ऐसे ही शुरू हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 40 लोगों को एक ही दिन में मारा गया मणिपुर में, अलग अलग जगह पे। और इनका और सारे बीरेन सिंह ने ही बोला ये बात। पब्लिक ने इनका हाथ पर बंदूक है, वो सारे को मिलिटेंट से इसी बोलना है। हाँ। हमको तो डिफेंस सॉल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन शांति पहले नहीं होगा? सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाना है। अच्छा, आपका ये पहला है कि हाँ। पहले रेजिडेंस रूल हो। उसके बाद बातचीत पीस प्रोसेस ही ठीक शुरू है। करना है। ठीक है, उसके अलावा तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अगर बीरेन तो नहीं हटा के यहाँ शांति नहीं हो। अच्छा, आपको इसमें भी कोई आपको दिलचस्पी है कि अगर बीरेन सिंह को हटा दे या बीजेपी का कोई और ही बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दे शांति के लिए, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। बीरेन के अलावा बीरेन सिंह को कोई भी ला के सकता है। अच्छा, ये सॉल्यूशन है। हाँ। कोई बात नहीं। बीरेन सिंह सही फेवर कोई काम किसी नहीं को कर रहा। आए कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो कि दोनों ग्रुप के बारे में शांति से सोचे और शांति लाए वहाँ पे, ऐसा चाह सकते हैं। हाँ, ये ऑल्टरनेटिव भी अगर हो थोड़े दिन के लिए, है सकता है। ये ना, भी जब हो तक सकता है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता है हाँ, तब तक वो भी हो सकता है ना, कि इमीडिएट शांति तो लाना जरूरी है ना। हाँ तो जी। दिस कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, थोड़े टेम्परेरी सॉल्यूशन, कि जब तक शांति आए, फिर मीटिंग हो, फिर डिस्कशन हो, और फिर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी काम करे, जिससे परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाए। तब तक परमानेंट सॉल्यूशन उसका शांति से निकल पाए। राइट? राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग एंड शेयरिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू।